हर हर मोदी, फिर था घर घर मोदी, अब है थर थर मोदी। कोई आपको अगवा करके ले जाएगा, आप चले जाएंगे और कहेंगे मुझे मालूम ही नहीं था मैं कहां जा रहा हूं। लॉलीपॉप दी, बच्चे को बोला गाड़ी में बैठ जा, बच्चा गाड़ी में बैठ गया। ऐसा होता है क्या भाई? फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर रहे हो, कुछ तो शर्म करो भाई। মার্কিন অপরাধী জেফ্রি এপস্টিন ফাইলে মোদির মন্ত্রীর নাম। ইস্তফা দেবেন নাকি মোদি এবং মন্ত্রী হরদীপ পুরী? कुछ तो शर्म करो মন্তব্যে মোদিকে আক্রমণ কংগ্রেসের মুখপাত্র পবন খেরার। कोई आपको अगवा करके ले जाएगा, आप चले जाएंगे और कहेंगे मुझे मालूम ही नहीं था मैं कहां जा रहा हूं। लॉलीपॉप दी, बच्चे को बोला गाड़ी में बैठ जा, बच्चा गाड़ी में बैठ गया। ऐसा होता है क्या भाई? फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर रहे हो, कुछ तो शर्म करो भाई। মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরীর ইমেল থেকে ফাঁস চাঞ্চল্যকর তথ্য। দেশ জানার আগে ভারতের বড় বিষয় জানানো হয় এপস্টিন জেফ্রিকে। 2015 সালে ডিজিটাল ইন্ডিয়া প্রকল্প চালু করে সরকার, কিন্তু 7 মাস আগে 2014 সালে এই বিষয়টি এপস্টিনকে অবগত করেছিলেন পুরী। জঘন্য অপরাধের দোষী সাব্যস্ত এপস্টিন ফাইলে নাম জড়ানোর বিষয়ে বিশ্বের 7 দেশের শীর্ষস্থানীয় নেতার ইস্তফার পর বড় মন্তব্য পবন খেরার। হরদীপ সিং পুরীর ইস্যুতে ক্ষমতাসীন মোদী সরকারের প্রেসার বাড়ালো বিরোধী কংগ্রেস। এপস্টিন ফাইলে নাম থাকায় এক মুহূর্ত মন্ত্রিত্বে থাকার অধিকার নেই পুরীর, দাবি তোলেন কংগ্রেস মুখপাত্র পবন খেরা। মার্কিন কালো অধ্যায় নিয়ে হর হর মোদি এখন থর থর মোদি হয়েছেন মন্তব্যে কটাক্ষ কংগ্রেসের। লজ্জা থাকলে ক্ষমতা ছাড়ুন, মোদি পুরীকে নিশানা করে শানিত আক্রমণ পবন খেরার। कई हफ्तों से चल रहा है, पूरे विश्व में चल रहा है, कई जगह इस्तीफे हो रहे हैं। 7 देशों के नेताओं ने इस्तीफे दिए हैं। हमारे देश में, और बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे देश के कुछ लोगों का नाम भी इन एप्स्टीन फाइल्स में है। मोदी जी का नाम है, लेकिन जो गंभीर मुद्दा है, बार बार जिसका नाम आता है, और वो चुप रहते तो शायद हम ये सब नहीं बोलते, लेकिन उन्होंने मुंह खोला और झूठ बोला। জেফ্রি এপস্টিনকে ঘিরে প্রকাশিত নথিতে নাম উল্লেখের অভিযোগ সামনে আসার পরেও কেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী এখনো ইস্তফা দিচ্ছেন না, এই প্রশ্ন তুলেছে বিরোধী শিবির। এপস্টিন সম্পর্কিত বিতর্কে আমেরিকা, ব্রিটেন, নরওয়ে সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কিছু নেতা ও আমলা পদ ছেড়েছেন বা দায়িত্ব থেকে সরানো হয়েছে, এমন দাবি তুলে বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছে বিরোধীরা। আজ সংসদে এপস্টিন ফাইল ইস্যুতে সংসদ ভবনের বাইরে বিরোধীদের তুমুল প্রতিবাদী বিক্ষোভের পর সংবাদ মেল ডেকে বিতর্কের আগুনে রীতিমতো ঘি ঢেলে দেন কংগ্রেসের জাতীয় মুখপাত্র পবন খেরা। তিনি দাবি করেন, সংসদ নির্বাচিত হওয়ার আগেই হরদীপ সিং পুরীকে তড়িঘড়ি মন্ত্রী করেছেন মোদি, অথচ দেশ জানে না মন্ত্রী পুরীর মধ্যে কি এমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে তাকে রাতারাতি সরকারে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এমন প্রশ্ন তুলে রহস্য অনেক গভীরে রয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন পবন খেরা। যদিও পরে জেতানো হয়, তবে কি এমন মেধা ছিল? পুরী যখন ডিজিটাল ইন্ডিয়া প্রকল্প চালুর আগে থেকেই অগ্রিম প্রচারে ব্যস্ত ছিলেন, তখন তাকে করা হয় মোদী সরকারের পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী করা হরদীপ সিং পুরীকে। বিতর্ক সামনে আসার পরে হরদীপ সিং পুরী বিষয়টিকে মামুলি দেখিয়ে বিবৃতি দেওয়ার বিষয়টিকেও নিশানা করে পবন খেরা বলেন, শিশুকন্যাদের বিকৃত যৌনাচার এবং খুনের মতো জঘন্য অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত এপস্টিনের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার পর এত হালকাভাবে ব্যাখ্যা করা এবং অপরাধ স্বীকার ব্যক্তির অপরাধের উপর সংশয় প্রকাশ করার নেপথ্যে চরম নির্লজ্জতা এবং ক্ষমতায় অপব্যবহারের সঙ্গে তুলনা করেছেন পবন খেরা। যখন হরদীপ সিং পুরী মন্ত্রী ছিলেন না, 2014 সালের 13 নভেম্বর দেশের ডিজিটাল ইন্ডিয়া প্রকল্পের বিষয়ে অবগত করেছেন, অথচ এই তথ্যের 7 মাস পরে মোদী সরকার ডিজিটাল ইন্ডিয়া চালু করেছিল। এর মানে কি অঘোষিতভাবে ভারতের বিদেশ নীতি তখন মন্ত্রী পুরীর হাতেই ছিল? প্রশ্ন তুলে মোদী সরকারকে কাঠগড়ায় তুলেছেন পবন খেরা। এপস্টিন ফাইল ইস্যুতে মোদী সরকারকে রীতিমতো তর্জা ঠুকে বলতে শোনা যায়, কুছ তো শরম করো। সাংবাদিক সম্মেলনে পবন খেরা সেই মন্তব্যের আমরা আংশিক শোনাবো, শুনে নিন বিস্তারিত। कई हफ्तों से चल रहा है, पूरे विश्व में चल रहा है, कई जगह इस्तीफे हो रहे हैं। 7 देशों के नेताओं ने इस्तीफे दिए हैं। हमारे देश में, और बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे देश के कुछ लोगों का नाम भी इन एप्स्टीन फाइल्स में है। मोदी जी का नाम है, लेकिन जो गंभीर मुद्दा है, बार बार जिसका नाम आता है, और वो चुप रहते तो शायद हम ये सब नहीं बोलते, लेकिन उन्होंने मुंह खोला और झूठ बोला।
उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। ये हरदीप सिंह पुरी पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें जो अनाप शनाप बोला आपने सुना, उसमें बोलते हैं अंडर एज विमेन। ये अंडर एज विमेन क्या होता है साहब? सीधा सीधा बोलो, बच्चों के साथ कृकृत्य हुआ, बलात्कार हुआ, अंडर एज विमेन। और उसको कहते हैं जैसे जैसे होता है ना कि रेड लाइट जंप कर ली, छोटी सी बात है साहब। ये हरदीप पुरी हैं, इस देश के नेता हैं, नरेंद्र मोदी के नवरत्नों में एक हैं। बिना सांसद बनाए इन्हें मंत्री बनाया, इंडिपेंडेंट चार्ज दिया, कुछ तो कारण रहा होगा। उसके बाद हरदीप सिंह पुरी इंटरव्यू देने लगे साहब, एक के बाद एक इंटरव्यू, एक के बाद एक झूठ, एक के बाद एक, हर इंटरव्यू में झूठ। कहते हैं कि जब वो पहली बार एप्स्टीन से मिलने जा रहे थे तो उन्हें पता ही नहीं था कहां जा रहे थे। उन्हें कहा गया कि ड्राइवर पहुंचा देगा। ये देश के फॉरेन सर्विसेज के अधिकारी रहे हुए हैं, डिप्लोमेट हैं, एम्बेसडर रहे हुए हैं। एम्बेसडर साहब को पता ही नहीं था कि वो गाड़ी उनको कहां ले जा रही है। भाई, आप मीडियोकर ऑफिसर रहे हैं, हम मानते हैं, कोई ज्यादा इंटेलिजेंट ऑफिसर आपको कोई नहीं मानता था। सर्विस में भी आपके साथियों से हम बात करते हैं तो बताते हैं साहब मीडियोकर ऑफिसर है। अरे कितना ही मीडियोकर ऑफिसर हो, कोई आपको अगवा करके ले जाएगा, आप चले जाएंगे और कहेंगे मुझे मालूम ही नहीं था मैं कहां जा रहा हूं। लॉलीपॉप दी, बच्चे को बोला गाड़ी में बैठ जा, बच्चा गाड़ी में बैठ गया। ऐसा होता है क्या भाई? फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर रहे हुए, कुछ तो शर्म करो भाई। यहां बड़े बड़े लोग रहे हुए हैं। फिर कहते हैं मैंने गूगल किया, बड़ी बेचैनी हुई, अनईजी हो गया साहब, गूगल करके देखा मैं कहां जा रहा हूं। और फिर आपस में पूछा क्या हमें इनसे मिलना चाहिए जिनसे मिलने जा रहे हैं? ये हरदीप पुरी हैं, इंटरव्यू में बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, मैं तो सिर्फ आपके सामने चित्रण कर रहा हूं। हमने आपस में बात की क्या इनसे मिलने जाना चाहिए? हरदीप जी, सेकंड क्लास के बच्चे हो, मालूम है कहां जा रहे हो, गूगल ने बता दिया कहां जा रहे हो, ये एड्रेस किसका है, फिर आपस में सलाह मशविरा कर रहे हो। अनईजी हो, गूगल ने बता दिया कहां जा रहे हो, और फिर कहते हैं साहब हाथ में लॉलीपॉप था, जाना तो था। ये अधिकारी है फॉरेन सर्विसेज के, ये मंत्री हैं कैबिनेट के, और बहाने देखिए इनके। पहले तो पता नहीं था, पता चला तो अनईजी हो गए, लेकिन गाड़ी नहीं रुकवा पाए, किडनैप हो गए थे। फिर जो साथ में थे शायद उन्होंने कहा होगा अले बाबू बैठ जाओ बच्चे, चलो हम भी तो हैं तुम्हारे साथ, यही हुआ होगा। ये मजाक है। फिर इनको मंत्री बना दिया मोदी जी ने। फिर एक कहते हैं कि हम में से कुछ को एप्स्टीन के क्रिमिनल रिकॉर्ड पे शक था कि वो क्रिमिनल है या नहीं है। इस पर भी हरदीप पुरी कहते हैं कि हम में से कुछ लोगों को इस बात पर भी शक था कि एप्स्टीन क्रिमिनल है या नहीं। ये एप्स्टीन ने खुद 2008 में फ्लोरिडा के कोर्ट में अपना गुनाह कबूल लिया था, सजा हो गई थी। तो क्या हरदीप पुरी जी, भगवान खुद आकर आपको कहें कि हरदीप पुरी जी ये एप्स्टीन क्रिमिनल है, या मोदी जी आकर कहें, मोदी जी इनके भगवान हैं, कौन कहे तो आप मानेंगे? जब वो खुद कह रहा है कि हां मैंने ये क्राइम किया, उसने जब गुनाह कबूला तब उसको सजा हुई 2008 में। 2014 में हमारे मंत्री जी के मन में ये था, तब मंत्री नहीं थे, कहते हैं साहब हम में डाउट था कि इसने क्राइम किया या नहीं किया। बताइए साहब, ये मंत्री हैं, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, ये क्वालिटी है, इंटेलेक्ट की क्वालिटी, नैतिकता की क्वालिटी। किस पैमाने पे आप हरदीप पुरी को सही ठहराएंगे, मुझे आप बताइए, कौन सा पैमाना होगा? ये मेल्स आपके सामने हैं। कहते हैं साहब ज्यादा बात नहीं हुई एप्स्टीन से। एक इंटरव्यू में ये भी कहा, मैं उनके इंटरव्यू के कुछ एक्सर्प्ट्स सामने रख रहा हूं, 1-2 ईमेल और 3-4 मुलाकातें। झूठ, सरासर झूठ। कल एक इंटरव्यू था, अंग्रेजी के एक चैनल पे था, कहते हैं मैंने कभी अपॉइंटमेंट नहीं मांगी। झूठ। मैं आपके सामने ये 46 पन्ने मैंने कम किए हैं, आपको मैं भेजूंगा, आपके नंबर्स पे आ जाए, मोबाइल्स पे आ जाएगा। जेफ, कैन आई सी यू? जेफ, आर यू इन टाउन? भाई आप तो कह रहे हैं आपने कभी अपॉइंटमेंट मांगी ही नहीं, वो बुलाते थे तब जाते थे आप, तो ये क्या हो रहा है? जेफ, कैन आई सी यू? क्या आप पर मोदी का दबाव था कि जाइए एप्स्टीन से मिलिए? 2014 से 16, चलिए अभी वहीं की बात करते हैं, 17 पर भी आऊंगा। 2014 से 16 3 राजदूत रहे अमेरिका में भारत के। उनमें से एक श्री एस जयशंकर, दूसरे अरुण सिंह, तीसरे नवतेज सरना। ये तीनों क्या इतने नाकारा थे कि हरदीप पुरी, जो कि सेवानिवृत्त नौकरशाह था, कुछ नहीं था, 2014 से 16 के बीच में हरदीप पुरी कुछ नहीं था। तो ये किसके आदेश पर, किसके निर्देश पर एप्स्टीन से मिलने जाता था?
एप्स्टीन से मेल्स पे डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, ये सब चर्चाएं करता था। और तो और हैरानी की बात, 13 नवंबर 2014 को रीड हॉफमैन को एप्स्टीन ने एक मेल भेजा जिसमें वो डिजिटल इंडिया के बारे में जानकारी दे रहे थे। तारीख याद रखना, 13 नवंबर 2014। डिजिटल इंडिया शुरू कब हुआ, अनाउंस कब हुआ, वो डेट भी देख लीजिए जरा। डिजिटल इंडिया जुलाई 2015 में शुरू हुआ, यानी कि एप्स्टीन को भारत के नागरिकों से पहले डिजिटल इंडिया की जानकारी हमारे बाबू हरदीप पुरी दे रहे थे। देख रहे हैं आप, हम और आप इस गलतफहमी में हैं कि इस देश की सरकार को एक माई का लाल चला रहा है। इस देश की सरकार को एक दलाल चला रहा था अमेरिका में बैठकर। उस दलाल को पहले बताया जा रहा था कि डिजिटल इंडिया आ रहा है। अरे बोलने से पहले हरदीप पुरी जी, आपका कुछ तो इंटेलिजेंस होगा, आपने यूपीएससी क्वालिफाई किया है साहब। खुद ही बोल रहे हैं मैं तो डिजिटल इंडिया की जानकारी दे रहा था। क्यों दे रहे थे साहब? पहली बात तो आपको यह जानकारी कैसे मिली? आप तो सरकार का हिस्सा नहीं थे। फिर आप एप्स्टीन को क्यों जानकारी दे रहे थे? वो किस चीज का हिस्सा था? और नरेंद्र मोदी जी, अब आप बताइए, क्या जयशंकर को नकारा आप भी मानते हैं? हम तो मानते हैं। क्या जयशंकर राजदूत, अमेरिका में भारत का राजदूत, उसके माध्यम से आप एप्स्टीन को या किसी को भी कुछ भी जानकारी देना चाहते हो, उस पर हम बाद में आएंगे, उनके माध्यम से नहीं दे रहे थे आप, हरदीप पुरी के माध्यम से क्यों दे रहे थे? यह रिश्ता क्या है आपका और हरदीप का, या आपका और एप्स्टीन का, जिसमें हरदीप पुरी शायद बिचौलिए का काम कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम। तो हरदीप पुरी डिजिटल इंडिया की बातें कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया की घोषणा होने से पहले किससे बात कर रहे हैं साहब? एप्स्टीन से। बताइए, हैरान हो जाने वाली बात है या नहीं? आपको ये कहते हैं 2016 तक, अब 2017 में, ये मेरे सामने, आपके सामने मैं एक कागज दिखा रहा हूं। 2017 में हरदीप पुरी जी थे प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, RIS। ये दिल्ली बेस्ड एक थिंक टैंक है जिसकी फंडिंग भारत सरकार करती है। तो ये भारत सरकार के नुमाइंदे 2017 में एप्स्टीन को क्यों मेल भेज रहे थे, जरा ये बताइए मुझे। एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाउ एंड व्हाई वाज ही सेंडिंग अ मेल टू एप्स्टीन, अ सेक्स ऑफेंडर, अ क्रिमिनल? एंड बिफोर दैट, between 2014 and 16, by what authority, under whose instructions, under what authority was he interacting with Epstein? He was a nobody. Mr. Hardeep Puri was a retired diplomat, full stop. We had 3 ambassadors between 2014 and 16 to the US. One was S. Jaishankar, the other was Arun Singh, and the third was Navtej Sarna. Were they so useless that the Prime Minister needed Hardeep Puri's services to interact with Epstein? Why? And Mr. Hardeep Puri was talking about Digital India 7 months before Digital India was made public in India, was announced in India. Who was he talking about Digital India to? Epstein. Why? This is our question. तो ये जो गंभीर बातें आपके सामने मैं रख रहा हूं, किसी कारण से रख रहे हैं। फिर हम ईमेल्स पे तो आपको दिखा ही रहे हैं। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा या इंटरव्यू में कहा, मेरे को ये ध्यान नहीं है, लेकिन कहते हैं अरे यार कुछ हुआ होता ना तो मैं तुम्हें बताता। इमेजिन, लुक एट द अप्रोच जिससे ये बोल रहे हैं कि अगर कुछ हुआ होता तो मैं तुम्हें बताता, मैं तो इसी पे रह गया। ये इस व्यक्ति की मानसिकता है कि मैं क्राइम्स का हिस्सा हुआ होता तो मैं आपको बताता, मैं तो सिर्फ मिलकर ही रह गया। ये पश्चाताप दिखा रहे हैं हरदीप पुरी। क्या इस आदमी को 1 मिनट भी मंत्री पद पर बनने रहने का हक है? आप मुझे बताइए।